रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। सो अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं। तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 34 में आएंगे तुम लोग। वहां पे तुम पेंसिल से मार्क करना, हो सके तो पेन से नहीं। सो लेट अस स्टार्ट दिस ऑब्जेक्टिव्स। चलो बोलो फटाफट। डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या बोलेंगे? शेयर। The benefit of depository receipt is ability to raise capital in dash market. International market. Yes. Next, dash are residual claimants against the income or assets of the company. Residue मतलब जो लास्ट का बचता है, किसको बचता है? Equity shareholder. Equity shareholders. Dash participate in the management of their company. बोलो फटाफट। Equity shareholder. Equity shareholders participate करते हैं, preference और depositors attend नहीं कर सकते मीटिंग, therefore cannot participate. Dash shares are issued free of cost to existing equity shareholders. Bonus share. Next, the holder of preference shares has a right to receive dash rate of dividend, fixed, fluctuating, lower. Fixed. Correct. Accumulated dividend is paid to dash preference shares. Redeemable, cumulative, convertible. Cumulative. The holder of dash preference shares have right to convert their shares into equity shares. Convertible. Correct. Next, debenture holders are dash of the company. Creditors, owners या suppliers कौन है? Creditors. Dash is paid on borrowed capital, interest, discount or Interest. 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 Yes. Debenture holders get fixed rate of dash as return on their investment. किसका टर्न है? बोलो बोलो सार्थक, फटाफट बोल। एक ने बोला तो रुक जाने का, सबका टर्न होने के बाद। हाँ Sir, हाँ, interest. क्या बोल रहा है? Interest, sir. Interest. Okay. Next, convertible debentures are converted into dash after a specific period. Equity shares. Next, retained earnings are dash source of financing. Internal. Next, the holder of bond is dash of the company. Creditor. Next, company can accept deposits from public minimum for dash months. 6. 6. एक करके, company can accept deposits from public maximum for dash months. 36. A depository receipt credit in dash is called American depository receipt. London, Japan, USA. USA. ओके ओके। नेक्स्ट तुम्हारे सामने ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है। पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल। हर एक को एक एक मौका मिलेगा, बोलो फटाफट। सार्थक चालू कर। Sir, venture capital.
जो क्लोजेस्ट है वो लेने का, ठीक है। वेंचर कैपिटल एक आंसर है। नेक्स्ट श्वेता, डिबेंचर ट्रस्टीज, Trust deed. सॉरी Trust deed. ट्रस्ट डीड, करेक्ट। उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है अंडर डिबेंचर ट्रस्ट डीड। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, Cautious investors. ठीक है। फिर नेक्स्ट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, Instrument of debit. डेबिट नहीं देते हो। ये डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप भी नजदीक है, लेकिन ये ज्यादा क्लोज है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेथ। लास्ट, बोनस शेयर्स, Sir, capitalization of profit. कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट लो, वन वर्ड, द रियल मास्टर ऑफ कंपनी कौन है? Equity shareholders. Equity shareholders. नेक्स्ट, a document of title of ownership of shares, Share certificate. the holders of the shares are entitled to participate in the surplus profit, Preference share. उसको बोलना पड़ेगा सरप्लस प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर नहीं, उसके लिए पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होना जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर में नॉन पार्टिसिपेटिंग रहेगा तो नहीं कर सकते, इसलिए प्रेफरेंस शेयर का आंसर गलत माना जाएगा, पार्टिसिपेटिंग बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, a party through whom the company deals with debenture holders, Sir, debenture trustee. name the shareholders who participate in the management, Equity shareholders. next, the value of share in which is written on the share certificate, Face value. the value of shares which is determined by demand and supply forces in the share market, Equity shareholder. डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट वैल्यू, टाइप ऑफ शेयर नहीं पूछा है, मार्केट वैल्यू पूछा है। द वैल्यू शेयर व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, वो मार्केट वैल्यू बनता है शेयर बाजार में। द पॉलिसी ऑफ यूजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, Conservative policy. कंजर्वेटिव पॉलिसी डिविडेंड पे होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स होता है। कंजर्वेटिव पॉलिसी इज अ पॉलिसी एक्सक्लूसिवली फॉर डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड शब्द यूज नहीं किया है। वो प्रॉफिट का जो पॉलिसी है वो अलग रहेगा, डिविडेंड का पॉलिसी अलग रहेगा। सो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसको रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, ठीक है। या इसको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। चलो लोन, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट, क्या है यहाँ पे ढक गया है। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन इश्यूड बाय कंपनी टू डिपॉजिटर, Deposit receipt. ठीक है।
नेक्स्ट, a dollar denominated instrument traded in USA. बोलो, कितना इजी है? American depository receipt. अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट. Next, the depository ADR. The depository receipts are traded in country other than USA. GRD सर. GRD कोई शब्द नहीं है, GDR होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. GDA भी नहीं है, GDR, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा अभी. हाँ, नेक्स्ट, money raised by company from public for minimum 6 months to maximum 36 months. Public deposits. Public deposit. Next, credit extended by suppliers with an intention to increase their sales. ट्रेड क्रेडिट. हाँ, वापस बोलो प्लीज. ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट. और लास्ट का, द क्रेडिट एक्सटेंडेड फैसिलिटी फॉर टू कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद बैंक. करंट अकाउंट में कौन सा मिलता है? करंट अकाउंट से तुम एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हो. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हुआ था ना तुम्हारा, Overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट बोलने का पूरा. चलो नेक्स्ट लो, ट्रू और फॉल्स. इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल. बोलो. ट्रू सर. ट्रू. वेंचर कैपिटल बोलते हैं, रिस्क कैपिटल बोलते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. False. False. फ्लक्चुएटिंग रेट. नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डिस्काउंटेड शॉक एब्जॉर्बर. True sir. क्योंकि अल्टीमेटली, True sir. हाँ, अल्टीमेटली सब लॉस भुगतना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस को तो कुछ भुगतना नहीं. डिबेंचर होल्डर्स हैव राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. False. एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स अटेंड कर सकते हैं, प्रेफरेंस और डिबेंचर होल्डर्स नहीं. नेक्स्ट, बॉन्ड होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी. फॉल्स. False. फिर ट्रू आंसर है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट, डिपॉजिटरी बैंक स्टोर्स द शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ जीडीआर होल्डर. True. Next, financial institutions underwrite the issue of securities. अंडरराइट मतलब इश्यू करने के लिए पैसा कम पड़ा तो बैंक भर देते हैं, उनको अंडरराइटर्स बोलते हैं. क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस, ट्रू. बड़े बड़े बैंक्स ही कर सकते हैं अंडरराइटिंग का काम, कि मार्केट से 100 रुपए चाहिए, 70 रुपए आया तो 30 रुपए बैंक दे देंगे ताकि तुमको पैसा शॉर्ट ना पड़े. उसके लिए वो लोग अंडरराइटिंग कमीशन चार्ज करते हैं. ठीक है, वो नहीं था चैप्टर में इसलिए मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया. कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट हाइपोथिकेशन. हाइपोथिकेशन मतलब गिरवी रखना ऑफ गुड्स और एनी सिक्योरिटी. बोलो, गिरवी रखने के बाद तुमको पैसा कर्जा दिया जाएगा. ठीक है, चलो. ट्रेड क्रेडिट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. ट्रू या फॉल्स? बोलो, फटाफट बोलो. क्या आप करते हो यार? मतलब 2-3 महीने का उधारी लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है ना वो.
मैंने क्या बताया था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये टाइम फ्रेम क्या हुआ, 1 साल से कम तो शॉर्ट टर्म हुआ, इन लोग लॉन्ग टर्म बोल रहे तो फॉल्स हो जाएगा। दिमाग लगाओ फटाफट। चलो पहला बोलो, ऑड वन कौन सा है? Return earnings. डिवेंचर कर्ज है, पब्लिक डिपॉजिट कर्ज है, तो रिटेन अर्निंग्स तुम्हारा ऑड वन है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू। redemption value, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू से पैसा आएगा, रिडेम्पशन में जाएगा, इसलिए रिडेम्पशन तुम्हारा ऑड मैन है, ऑड वन है। नेक्स्ट, तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर सर्टिफिकेट, एडीआर। ADR. शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ ओनरशिप है, एडीआर एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होता है, तो ऑड वन इज एडीआर। ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। Trade credit. ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट बैंक देते हैं, ट्रेड क्रेडिट सप्लायर देते हैं, इसलिए ट्रेड क्रेडिट ऑड में है इसमें। कंप्लीट द सेंटेंसेस, मतलब ये एक प्रकार का फिल इन द ब्लैंक है तुम्हारा। चलो, द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज। capital, The convertible preference shareholders have a right to convert their shares into. Equity share. Correct. Equity shareholders elect their representatives called Boards of director. directors. D कैपिटल में चाहिए, वो मैं करेक्ट कर दूंगा, और ऊपर का C कैपिटल में चाहिए। Bonuses are issued as gift to Equity shareholder. Equity shareholder. the bondholders are dash of the company. creditors, Depository receipt traded in the country other than USA is called Global depository receipt. global depository receipt. First industrial policy was declared in the year जुलाई ऑफ 1991, 1948, ओके। और मॉडर्न जमाने में जो जीडीआर, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो 1991 में, और इंडिया का पहला 1948 को। When goods are delivered by supplier to customer on basis of deferred payment, it is called as Trade Trade. credit. Trade credit. trade credit. ओके, चलो ये फटाफट बताओ, ये इसका फेवरेट पार्ट, तेरा फेवरेट, चलो बोलो, सबसे पहले क्या आएगा? पार्ट तू ही चालू कर, चल। पार्ट बोलेगा तो लास्ट वाला आंसर देने में आएगी। Fluctuating rate of dividend. नेक्स्ट, वेदांत। The preference share. प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, डिबेंचर्स। Interest at fixed rate. एक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। retained earnings, और लास्ट में जो पब्लिक डिपॉजिट है वो पार्थ का ही फेवरेट है, वो तो बाकी का बोल दे बेटा। Short term loan. शॉर्ट टर्म लोन।
चलो नेक्स्ट में आते हैं। आंसर इन वन सेंटेंस तुमको लर्न करना पड़ेगा। व्हाट इज शेयर? क्या बोलोगे? शेयर इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। बहुत सारे, स्मॉल यूनिट, स्मॉल पार्ट, ठीक है, स्मॉल यूनिट, स्मॉल पार्ट भी बोला तो भी चलेगा। व्हाट आर इक्विटी शेयर्स? where the dividend is fluctuating and the payment is given last, they are the real owners of the company. फिर प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स, ये एक्चुअली डिफाइन किया है। इक्विटी शेयर्स आर दोज व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज which receive priority in dividend and repayment of capital. What are retained earnings? That part of profit which is not distributed as dividend is called as reserves. That reserves which is reinvested is called as retained earnings. Debenture is a borrowed capital of the company, that is a debt acknowledged by the company. Bond एक प्रकार का medium to long term instrument है of credit. In which country can ADR be issued? America. ठीक है, ADR is issued in USA. फिर नेक्स्ट है, इन विच कंट्री कैन जीडीआर बी इश्यूड? द कंट्री अदर देन यूएसए, ठीक है ना, यूएसए छोड़कर बाकी जगह जीडीआर इश्यू होता है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या है बताओ? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या है? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस। Convertible debentures give right to the debenture holders to convert their debentures into equity or preference at a predetermined rate. Cumulative preference shares on which dividend accumulates if it is not paid in any of the previous year. ऐसा इसका आंसर बैठेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स, इजी है तो चलो एक एक करके बताओ। ओन कैपिटल इज टेम्पररी कैपिटल। Owned capital is permanent capital. नेक्स्ट, equity shares get dividend at fixed rate. बोलो बोलो फटाफट। श्वेता। Fluctuating rate. नेक्स्ट, पार्थ। वेदांत। प्रेफरेंस शेयर्स गिव डिविडेंड एंड फ्लक्चुएटिंग रेट। बोल फटाफट। Yes, sir. यस सर, फटाफट आंसर बोलो बेटा, टाइम नहीं है, फटाफट बोलो। सार्थक। Sir, fixed rate. इतना इजी था, क्या प्रॉब्लम है? फटाफट बोलते चलो आंसर। नेक्स्ट, रिटर्न अर्निंग्स इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। internal, डिबेंचर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। Creditor. बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। long term, शॉर्ट टर्म में तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट आता है। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी रिसीट क्रेडिट इन यूएसए इज कॉल्ड एज। बोलो बोलो फटाफट बोलो। American depository receipt. अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी
अभी केसेस करते हैं, देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ डोनाल्ड कंपनी फॉर द ईयर 2018-19 रिवील्स इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 25 lakhs एंड रिटेन अर्निंग्स ऑफ 50 lakhs. इज द कंपनी फाइनेंशियली साउंड? क्या लगता है? क्या लगता है तुम लोग को, साउंड है कि नहीं कंपनी? यस, सीधा हिसाब है। 25 लाख का शेयर कैपिटल और 50 लाख का सेविंग्स, मतलब कंपनी का नेटवर्थ हुआ 25 प्लस 50 75 lakhs. तो कंपनी अच्छे तरीके से साउंड है, ठीक है। टोटल ऑफ 75 lakhs एज अ पार्ट ऑफ ओन कैपिटल. ओन कैपिटल नहीं बोलूंगा इसको, मैं नेटवर्थ बोलूंगा. ऑल्सो देर इज नो लोन. This is the reason that the company is on. इसको ऐसे बोलेंगे. Yes, the company is financial because it has a total of 75 lakhs as net worth. समझ में? Net worth उनका ये है 75 lakhs है. Also, company is financially sound. तो इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है? Is financially sound. ठीक है, आई थिंक वी आर रेडी नाउ फॉर द नेक्स्ट वन. ये अपना हो गया. चलो नेक्स्ट लो. द बैलेंस शीट ऑफ डोनाल्ड कंपनी 25 और 50 लाख. कैन द रिटेन अर्निंग्स बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल? क्या लगता है? नाउ बोनस शेयर जब भी देते हैं तो रिजर्व में से निकाल के शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए बोनस शेयर्स को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं. यस, एज पर कंपनीज एक्ट तुम द रिटेन अर्निंग्स को तुम कन्वर्ट कर सकते हो इनटू शेयर कैपिटल. बोनस शेयर्स देने के लिए रिटेन अर्निंग्स का यूज किया जा सकता है. आया समझ में सबको? यस और नो? Yes, sir. इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं. नेक्स्ट, द बैलेंस शीट ऑफ डोनाल्ड कंपनी फॉर द ईयर 25 और 50. व्हाट टाइप ऑफ सोर्स, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल सोर्स है कि एक्सटर्नल सोर्स है, बताओ. internal, रिटेन अर्निंग्स हमेशा इंटरनल सोर्स माना जाता है. नेक्स्ट, मिस्टर, ये भी सेकंड केस है. मिस्टर सतीश स्पेकुलेटर है, मतलब शेयर बाजार में खरीदी बिक्री करता है, मार्केट में बढ़ रहा है कंपनी का प्रोडक्ट एंड अर्न हैंडसमली. अकॉर्डिंग टू स्पेकुलेटर मतलब जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो क्या करना चाहिए उसने? इक्विटी शेयर में पैसा लगाना चाहिए क्या प्रेफरेंस शेयर्स में? क्या एडवाइस है तुम्हारा? Yes. हाँ बोलो, किसमें पैसा लगाएगा वो? इक्विटी शेयर. इक्विटी में लगाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर में कमाई भी बहुत ज्यादा है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है. समझ में है? इक्विटी शेयर कैपिटल में लगाएगा क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन उसमें ज्यादा है. Mr. Satish is a speculator. What does he receive? He received नहीं. What does he receive as return on investment? क्या मिलेगा उसको रिटर्न में? dividend, डिविडेंड और एक और चीज मिलेगा. हाँ रिटर्न है तो डिविडेंड, लेकिन उसका एक और चीज मिलेगा जो तुमको मैं नॉलेज के लिए बताऊं. शेयर बाजार में जब शेयर के प्राइस की बढ़ोतरी होती है उसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड, वरना
प्लस शेयर बाजार में बढ़ोतरी जिसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। जो मिस्टर सतीश है एज अ शेयर होल्डर उसके कौन कौन से राइट्स है, कोई भी एक राइट बोलो। वैसे तो 10-15 राइट्स बोल सकते हैं बट कोई भी एक बोलो। कोई बोल सकता है शेयर होल्डर के राइट क्या है? कितना इजी है। राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू वोट, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू रिसीव नोटिस, राइट टू अपॉइंट ऑडिटर, राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर, राइट टू अपॉइंट सेक्रेटरी, राइट टू रिसीव एनुअल रिपोर्ट, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। ठीक है ना? राइट टू अटेंड एंड वोट, ये अपन ने बोला। राइट टू रिसीव डिविडेंड है। बहुत सारे राइट्स हैं जो शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। सो मैंने 2-3 राइट्स बोल दिए, अटेंड, वोट, रिसीव डिविडेंड। नेम द टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट मिस्टर रोहित विल ऑप्ट फॉर। ये अलग है। इन्वेस्टर, मिस्टर रोहित इन्वेस्टर है, वो अपने खुद के पैसे लगाता है शेयर बाजार में। वो इन्वेस्टमेंट इनकम रिस्क लेना नहीं चाहता, तो कहां पे वो पैसा लगाएगा? कहां वो पैसा लगाएगा बताओ। इक्विटी के प्रेफरेंस कहां पे लगाएगा? वो इन्वेस्ट करना चाहता है बट रिस्क लेना नहीं चाहता। हाँ, प्रेफरेंस पे। वो प्रेफरेंस में लगाएगा क्योंकि प्रेफरेंस में रिस्क काफी कम है। मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 सिर्फ 1, इक्विटी में 10/10 रिस्क है। चलो नेक्स्ट, व्हाट डज ही रिसीव एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? प्रेफरेंस शेयर्स में रिटर्न में क्या मिलेगा उसको? बोलो क्या मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स में रिटर्न्स में क्या मिलता है? बोलो फटाफट। डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। फिक्स रेट एज रिटर्न इन्वेस्टमेंट। और आखिरी का ये सी नंबर, एक मिनट, हाँ, द रिटर्न इन्वेस्टमेंट विच ही रिसीव्स इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। बोलो फिक्स्ड है क्या फ्लक्चुएटिंग है? बोलो फिक्स्ड। फिक्स्ड है। सो इसका जो रिटर्न है वो फिक्स्ड है। हो गया तुम्हारा खत्म, करेक्ट। सो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स खत्म होता है।